बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के दौरे की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान के दौरे पर हैं। जापान के टोक्यो पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने जापान की यात्रा के पहले दिन जापानी प्रधानमंत्री के साथ भारत जापान आर्थिक मंच में भाग लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि पिछले 11 सालों में भारत में कई बदलाव हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत में निवेश के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हम न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को खोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और जापान हर क्षेत्र में एक बेहतर साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत एक तरीके से टैलेंट का पावर हाउस बन चुका है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और बिहार में गाली पर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब कांग्रेस दफ्तर पर चढ़ाई और सड़क पर मारपीट तक पहुंच चुकी है। चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी दलों के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 27 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को गाली दिए जाने के बाद बीजेपी काफी गुस्से में है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सड़क पर मार्च शुरू कर चुकी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी का ये मार्च कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचा, पहले से तैयार कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सामने आ गए। सड़क पर ही दोनों दलों की जो कार्यकर्ता थे और नेता थे वो भिड़ते हुए दिखे। लाठी डंडे और मारपीट पर पथराव की स्थिति तक नौबत आ गई, जिसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। I welcome all of you to the 48th annual general meeting of the company. This meeting is held through video conferencing in compliance with the circulars issued by the regulators. The company has taken all feasible steps to ensure that the shareholders are provided an opportunity to participate in the annual general meeting. Adequate video conferencing facility and live webcast of the proceedings of this meeting have also been provided. Requisite quorum is present and therefore I call the meeting to order. Register of directors and key managerial personnel and their shareholding, the register of contracts or arrangements in which directors are interested, and certificate from the secretarial auditor on employees' stock option scheme are available for inspection by the members. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Shri Haigriv Khaitan, Shri Dinesh Kanabar, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri PMS Prasad, Shri Anant Ambani, Mrs. Isha Ambani Piramal, Shri Akash Ambani. All directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, our Company Secretary, Shri K. Seturaman,
and the representatives of our statutory auditors and the secretarial auditors of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 6, 2025, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31, 2025, have already been circulated electronically to the members of the company. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and the consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2025 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, Namaste, and a very warm welcome to the 48th Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. We meet today on the most auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. Lord Ganesh has arrived in our homes and in pandals on our streets. Let us begin this meeting by seeking the blessings of Bhagwan Ganesh for you, your families, the entire Reliance Parivar, and for all the people of India and the world. Friends, the global economy today is navigating through an era of great uncertainty. Geopolitical tensions are rising, volatility is persistent, and predictability is scarce. The world is realizing that conflict produces no winners, whereas cooperation ensures shared prosperity. When nations cooperate, trade flows freely, investments flourish, and everyone wins. In today's interdependent world, the prosperity of each country is inseparably linked to the prosperity of all. Paradoxically, while uncertainty surrounds us, humanity also stands at the threshold of a golden age in the 21st century. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम का कार्यक्रम आप लाइव देख रहे थे और चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। गुवाहाटी में कार्यक्रम में शामिल हुए थे अमित शाह, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने घृणा की राजनीति की शुरुआत की। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए, लेकिन पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द को जनता नहीं सहेगी। शाह ने कहा कि जितना गाली दोगे उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। मंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है, उसकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति
घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस आरजेडी के मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कहा कि जिस तरीके से अपशब्द कहे गए वो घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी मामले को लेकर कहा कि ये बयान किसने दिया था, किसका ये बयान है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री या उनके निजी परिवार पर अपशब्द कहे जाएं। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। कोई नहीं चाहेगा, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के कोई निजी परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए। ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। और वहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय तक मार्च करना और मारपीट के मामले पर सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि ये लोग हताशा में हैं और इसीलिए ये सब काम हो रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा चुके हैं और इसलिए ये लोग मारपीट और प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। ये लोग हताश हैं राहुल जी की लोकप्रियता से, घबरा के और इस तरह का कुत्सित मानसिकता से ये सब काम कर रहे हैं। इसके लिए जितनी की जाए वो कम है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की निंदा की। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो अत्यंत अशोभनीय है, इसकी निंदा करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर 25 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी सबसे विनती है कि कृपया करके आप दुखी मत होइए, गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है कि वो नामदार हैं और हम कामदार हैं। कांग्रेस के शहजादे अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए।
और वहीं दरभंगा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया। गिरिराज सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कारण है कि जब राहुल तेजस्वी की यात्रा शुरू होती है उसी समय नेपाल के रास्ते 3 आतंकी बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवादियों का मनोबल ऐसे ही नहीं बढ़ता, बल्कि देश के भीतर कुछ आस्तीन के सांप हैं जो उनके संरक्षक बने हुए हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 1971 में कांग्रेस के समय बांग्लादेशी और रोहिंग्या आतंकवादी देश में दाखिल हुए और लालू प्रसाद के शासनकाल में पीएफआई को पाला पोसा गया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अगर हमारी सरकार आगे भी सत्ता में आती है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश से बाहर निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव न सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बल्कि आतंकवादियों को भी संरक्षण दे रहे हैं। आप कुछ बिहार में है जो 71 से कांग्रेस ने पाल पोस करके लालू जी तक बढ़ाया। बांग्लादेशी को जिसने पनाह दिया है, हमारी सरकार अगली बार आएगी, पनाह देने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा और इन बांग्लादेशी रोहिंग्या को एक एक करके पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजेंगे। और चलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दे, संदिग्ध वोटर कार्ड की जांच शुरू। 3 लाख से ज्यादा वोटर्स को निकालने की तैयारी है। विदेशी नागरिकता वाले वोटर्स पर सख्ती लाखों की संख्या में है। बांग्लादेशी और नेपाल के नागरिक ईसी के नोटिस के बाद हटाने का काम शुरू होगा। और बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार के सभी परिवारों की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद प्रशासन की ओर से 6 महीने का आकलन भी होगा। जरूरत के हिसाब से 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी सरकार करेगी। बिहार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक के माध्यम से सरकार ने एक बड़े एजेंडे पर अपनी स्वीकृति दी है और यही वो एजेंडा है जिस पर सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग का ये एजेंडा था और इसके तहत अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की जाएगी। इस मात्र एक एजेंडे पर सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है और इस एजेंडे के तहत अब अधिकतम हर परिवार की जितने भी परिवार हैं बिहार में अधिकतम 2,10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी एक महिला को। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सौगात बिहार के महिलाओं के लिए। और जो जानकारी दी गई है मुख्य सचिव के माध्यम से उसके अनुसार जो इच्छुक महिलाएं होंगी वे आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर सकती हैं। सितंबर महीने से ही यानी अगले महीने से ही ये योजना जो है वो कार्यान्वित हो जाएगी और सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। यानी शुरुआती दौर में 10,000 रुपये हर महिला को दिया जाएगा और उसके बाद जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। राज्य में गाँवों से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार इसके लिए हाट और बाजार भी उपलब्ध कराएगी। यह लाभ महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिया जाएगा ताकि पूरे परिवार की आमदनी बढ़ सके और उनके जीवन स्तर में सुधार आए। इससे एक तरफ जहां बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा वहीं दूसरी तरफ लोगों को मजबूरी में रोजगार के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला हर परिवार को आर्थिक तौर पे स्वावलंबी बनाएगा, मजबूत बनाएगा और ये फैसला कहीं ना कहीं बिहार के महिलाओं को बड़ा सुकून देगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने नीतीश कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। रोहित सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हुआ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना भी उसी दिशा में बड़ा कदम है और इसका फायदा आने वाले चुनाव में भी मिलने की पूरी उम्मीद है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको सबल बनाने के लिए और उनके इच्छुक रोजगार के सृजन के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि
आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिसमें पहली किस्त 10,000 रुपये की और कार्य के मूल्यांकन के उपरांत 2 लाख रुपए की राशि निर्गत करने का जो निर्णय लिया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। हम नीतीश कुमार जी को और एनडीए गठबंधन की सरकार को आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन की सरकार ने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए अद्भुत काम किया है और आने वाले चुनाव में इसका प्रतिफल भी राज्य की महिलाएं, बहनें और बेटियां नीतीश जी और एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट करके जरूर देंगी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।